Hello everyone, I am Zinkal Patel from Raffle BCA College. Welcome you all to IT Tools for Business. Now in unit number 2, I am going to explain this font dialog box, right? Have you seen it? Okay, now let me expand this font dialog box by clicking this button, right? Or you can click Ctrl D also. Now after clicking this button, a font dialog box is open. Now let me explain all these font style, size, effect, right? Now first of all let me explain font type, or we can say font face. Okay, now here headings. Now headings जो है, it means that is headings and body both are predefined, right? This is the theme defined by inbuilt define, and if we select this body then by default जो font जो है उसमें select किए गए होंगे वो यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे. ठीक है, अगर हेडिंग हमें मेंशन करना है तो ये हेडिंग वाले फॉन्ट लेने हैं, तो उसमें भी जो प्री डिफाइंड ऑलरेडी डिफाइन किए गए फॉन्ट यूज़ किए गए हैं वो आपकी फॉन्ट फेस सेट हो जाएगी. ओके, नाउ कुछ हियर सम अदर font face are mentioned like agency FB, Algerian, Arial black. Okay, तो यहाँ पे preview भी है, so you can see in this preview. Okay, like if I select Times New Roman, then you can see in preview the font face. You can see font face in this preview. Okay, now font style. You can make it italic, bold, or both, bold or italic, right? In last video I already explained this. Also explain this font size, right? You can select font size large, or like you can also take 8 size, 9, 10, 11. Okay, now here font color automatic अभी black है. You can change font color by this combo box, right? Then if you select underline, ठीक है, if you do underline in this paragraph, then we can select this underline type. In last video I already explained this. Okay, now underline का color भी हम select कर सकते हैं यहाँ से, ये underline color combo box है. ठीक है, now here are some effect mentioned like strike through, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था. स्ट्राइक थ्रू आप प्रीव्यू में देख सकते हैं. फिर डबल लाइन से भी हम स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, सो डबल स्ट्राइक थ्रू भी हो सकता है. देन सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ठीक है, वो भी मैंने लास्ट वीडियो में शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया था. नाउ अगर हमें ये पैराग्राफ में फॉन्ट में शेडो इम्प्लीमेंट करना है, सो यू हैव टू चेक दिस चेक बॉक्स, तो शेडो इम्प्लीमेंट हो जाएगा. यू कैन सी इन दिस प्रीव्यू. देन इफ़ यू वांट ओनली आउटलाइन, नो फिलिंग, देन यू कैन select this outline checkbox, right? Now if you want to apply some effect like emboss, then you can check this checkbox. Then engrave like this. small cap सभी लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएंगे, बट इन स्मॉल साइज एंड ऑल कैप मतलब ऑल आर कैपिटल्स. नाउ हिडन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट. लाइक एग्ज़ाम में अब तक आया नहीं है, लेकिन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस इफेक्ट हिडन. इफ़ आई फॉर एग्ज़ाम्पल राइट सम पैराग्राफ, लाइक अगर मुझे पैराग्राफ लिखना है मैन्युअली, ठीक है, तो मुझे इट विल टेक टाइम. बट अगर शॉर्ट में मुझे कोई भी पैराग्राफ चाहिए, सो I just write equal to and one function rand, random. I write in short random and then bracket, and if you click enter then automatically 3 paragraph display here, so no need to write all 3 paragraph manually, right? So now you can apply all the theme in these 3 paragraph. Now if you want to hide the second paragraph in print, ठीक है, देन जस्ट ओपन फॉन्ट एंड हाइड हिडन चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है. ठीक है, नाउ इफ़ आई क्लिक ऑन ओके, सी आपका जो सेकंड पैराग्राफ जो है वो हाइड हो गया है.
Clear? Hope you understand this effect. Okay, fine. Now let me undo this task. Undo means as it is, जैसे पहले थे वैसा ही हो जाएगा. By you can also click Ctrl Z. Ctrl Z से undo होता है. ठीक है, क्लियर. नाउ यहाँ पे कुछ कैरेक्टर स्पेसिंग है, लाइक यहाँ पे स्केल है. ना व्हाट डू यू मीन बाय स्केल? सी, अगर अभी 200 है, ठीक है, फॉन्ट स्केल की बात है. अगर मैंने 100 पसंद कर दिया तो वो स्मॉल हो जाएगा. ठीक है, अगर आप पैराग्राफ पे भी अप्लाई करना चाहते हो तो पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करो, देन उस पर फिर से अप्लाई करो कैरेक्टर स्पेसिंग में स्केल. लाइक अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ 90%, तो ऐसा हो जाना चाहिए. ठीक है, प्रीव्यू में जो दिख रहा है वो. फिर अगर हमें पर्टिकुलर वर्ड में जितने भी कैरेक्टर है उसको एक्सपांड करने हैं तो हमें क्लिक करना है यहाँ पे स्पेसिंग में एक्सपांड. ठीक है, नॉर्मल रखने हैं तो नॉर्मल. आप प्रीव्यू में सारे चेंजेस देख सकते हो. देन कंडेंस्ड. ठीक है, कंडेंस करेंगे तो स्पेस जो है वो कम हो जाएगी. नाउ कितनी स्पेस कम करनी है वो यहाँ पे मेंशन है, लाइक कंडेंस बाय 0.9. और ठीक है, जितना ज़्यादा करोगे उतना नज़दीक फॉन्ट आता रहेगा, राइट. अगर मैंने ऐसा लिखा कि एक्सपांड बाय 1.5 तो उतना वो सेपरेट हो गया. क्लियर. नाउ पोजीशंस, लाइक पर्टिकुलर सेंटर में रखना है, अप डाउन. ठीक है, तो यहाँ पे है नॉर्मल. नॉर्मल मतलब सेंटर में. फिर रेज्ड मतलब थोड़ा सा वो रेज्ड हो जाएगा लाइन में, सेंटर्ड लाइन से. देन लोवर्ड मतलब सेंटर्ड लाइन से थोड़ा लो आ जाएगा. उसमें भी यहाँ पे स्पेस मेंशन की है कि लोवर्ड बाय 3 पॉइंट. ठीक है, और 4 पॉइंट, तो जैसे जैसे पॉइंट बढ़ाते जाएंगे वो लोअर होता जाएगा. इफ़ आई से रेज्ड बाय 6 पॉइंट तो उतना वो रेज्ड होगा, राइट. होप यू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर स्पेसिंग. ठीक है, ओके. नाउ दिस कर्निंग फॉन्ट. Now kerning is a typographical term that describes the process of moving letters closer together, right? So हमें क्या करना है यहाँ पे, क्लोज़र वर्ड को अगर हमें क्लोज़र लाना है तो यहाँ से हम पॉइंट सेट कर सकते हैं. ठीक है, ओके फाइन. दैट इज़ कैरेक्टर स्पेसिंग. वर्ड या लेटर्स के बीच में हमें कैरेक्टर डालना है तो हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कैरेक्टर स्पेसिंग टैब से डाल सकते हैं. ना यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्या है, मतलब जैसे ही हम डिफ़ॉल्ट प्रेस करेंगे सो एक मैसेज आएगा लाइक डू यू वांट दिस चेंजेस टू अफेक्ट ऑल न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस नॉर्मल टेम्पलेट. ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे जितना है वैसा ही करना है, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट रखना है. ये तो हमें कैंसिल करना है. डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, स्केल जो है 100%, स्पेसिंग जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, यहाँ पे भी नॉर्मल होना चाहिए, और कर्निंग फॉन्ट अभी नहीं. तो यस, ये सेट करना है डिफ़ॉल्ट में. ठीक है, क्लियर. सो यस, ठीक है, क्लियर. होप यू अंडरस्टैंड दिस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स. यहाँ पे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स शॉर्ट में पहले एक्सप्लेन करती हूँ. उसमें क्या होगा, लाइक यहाँ पे जो है वो बुलेटिन्स है, तो आप बुलेटिन्स दे सकते हो. कैसे बुलेटिन्स देना है, लाइक अगर मैंने ऐसा लिखा कि रॉफेल BBA और इन दैट FI BBA डिवीज़न 1 है, देन FI BBA डिवीज़न 2 है, देन SY BBA डिवीज़न 1 है, SY BBA डिवीज़न 2 है. वैसे ही SY BBA डिवीज़न, वैसे ही TY BBA डिवीज़न 1 है, देन TY BBA डिवीज़न 2 है. ठीक है, तो आप उसको बुलेटिन कर सकते हो, लाइक जस्ट सिलेक्ट दैट टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन दैट बुलेट. ठीक है, डिफ़ॉल्ट बुलेट सिलेक्ट कर सकते हो. नाउ यहाँ पे बहुत सारे बुलेट है, तो आपको जो बुलेट्स चाहिए आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. देन चेंज लिस्ट लेवल, आप फॉर एग्ज़ाम्पल इतने इंडेंट पे ये लेवल 1 पे ये बुलेट, फिर लेवल 2 पे ये बुलेट, ऐसा भी डिफ़ाइन कर सकते हो. और ये बटन से न्यू बुलेट जो सिम्बॉल्स ऑलरेडी डिफ़ाइंड है वो भी आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, या तो फिर पिक्चर दे सकते हो, ये इसमें से कोई भी आप पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप कोई भी फॉन्ट भी ले सकते हो. ठीक है, सिम्बॉल, स्पेशल सिम्बॉल भी दे सकते हो. क्लियर. तो ये है
बुलेटिन्स। वैसे ही ये सिंपल बुलेट्स है, आप नंबरिंग भी प्रिफर कर सकते हो इन दिस वे 1 2 3 4 या 1 2 3 4 ब्रैकेट, देन दिस वन लाइक दिस, ठीक है। स्मॉल कैपिटल आप कोई भी जो है नंबरिंग दे सकते हो। फिर यहाँ से आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो, जो ऑलरेडी डिफाइंड है लेवल वो सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक लेवल 1 पे यहाँ पे 1 है, फिर ए, फिर आई, ठीक है। ऐसे आप हेडिंग 1 2 के लिए जो भी यहाँ पे बुलेटिन्स डिफाइन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप अपना न्यू स्टाइल भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। वो डिटेल में हमें नहीं देखना है, आपको शॉर्ट में आना चाहिए। देन ये जो बटन है वो इंडेंट के बटन है, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। नाउ इफ़ आई सिलेक्ट डिक्रीज इंडेंट देन वो सी क्या हो रहा है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो इंडेंट, मतलब आप जब पैराग्राफ लिखते हो तो फर्स्ट लाइन जो है उसमें हम इंडेंट स्पेसिफाई करते हैं लाइक दिस। अगर ऑन द इंसर्ट टेप का अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडेंट स्पेसिफाई हुआ, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी हम इंडेंट अभी इंक्रीज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस बटन, इंक्रीज इंडेंट लाइक दिस वन, सी इंडेंट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर अगर उसको हमें शॉर्ट करना है तो शॉर्ट के लिए बटन है ये A to Z, ठीक है। पैराग्राफ को शॉर्ट करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है, ठीक है। उसके बाद हमें कौन सा लेटर लेना है वो भी हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइन। नाउ फॉर एग्जांपल इसको डिसेंडिंग में करना है तो यहाँ पे डिसेंडिंग प्रेस करूँगी तो TY पहले आ गया। क्लियर, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट है, लाइक ये लेफ्ट अलाइनमेंट, देन सेंटर, देन राइट अलाइनमेंट, एंड ये जो है वो जस्टिफाई है। जस्टिफाई लाइक दिस, देखो यहाँ पे ऑड इवन सब लाइन है तो जस्टिफाई करोगे तो एक ही कॉलम में आ जाएगी, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ पे मैं लाइन स्पेसिंग दे सकती हूँ, लाइक ये पैराग्राफ में जो है 2 लाइन के बीच में कितनी स्पेस है देखना। अगर मैं 1.5 करूँगी तो बढ़ गई, ठीक है। अगर 2.0 किया तो भी बढ़ गई, समझ में आ रहा है। तो 2 लाइन के बीच में जो स्पेसिंग है वो यहाँ से दे सकते हैं। अगर रिमूव करना है आफ्टर पैराग्राफ, जो यहाँ पे सी आफ्टर पैराग्राफ है वो हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और हम बिफोर पैराग्राफ भी दे सकते हैं यहाँ से, जस्ट क्लिक ऑन दैट, तो बिफोर पैराग्राफ भी यहाँ पे स्पेस ऐड हो गई। रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नाउ डिटेल में अगर उससे ज़्यादा जाना है तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम स्पेसिंग दे सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट लेटर, ओके। नाउ नेक्स्ट है दिस वन। अगर हमें बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर। देन अगर ये लाइन सेट करनी है हमें, कैसी लाइन, लाइक अगर ये पैराग्राफ को अगर हमें बॉक्स में रखना है तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। लाइक लेफ़्ट बॉर्डर हो तो लेफ़्ट साइड बॉर्डर आ जाएगी, और ऑल बॉर्डर और आउटसाइड बॉर्डर करनी है तो वो आउटसाइड बॉर्डर में हो जाएगा, ठीक है। तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से हम इतना परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नाउ उसके लिए उसको एक्सपांड करना है तो भी यहाँ पे बटन है। नाउ एक्सपांड होगा तो कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, लेट मी एक्सप्लेन दिस। लाइक अलाइनमेंट, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, जो हम यहाँ से शॉर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। देन आउटलाइन, लेवल, जो मैंने ऑलरेडी आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में एक्सप्लेन किया है वैसा ही है ये, बट यहाँ पे क्या होगा, पैराग्राफ में आउटलाइन आएगी, ठीक है। फिर इंडेंट, लेफ़्ट एंड राइट हम ये बटन से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम मैन्युअली स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि अगर हमें लेफ़्ट इंडेंट देना है तो कितना देना है, लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। सी अगर ये पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया और लेफ़्ट इंडेंट दिया लाइक 2, तो देखो प्रीव्यू में देखो मूव हो रहा है, ठीक है। और अगर राइट इंडेंट दिया तो वो राइट साइड से मूव होगा। सी क्लियर, प्रीव्यू में दिख रहा है आपको, फाइन। देखो पैराग्राफ में भी वो श्रिंक हो गया, इंडेंट दी है इसलिए लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है। नाउ यहाँ पे स्पेशल ऑप्शन है, लाइक अगर हमें फर्स्ट लाइन को ही सिर्फ इंडेंट देना है, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन को इंडेंट देंगे तो ऐसा आ जाएगा, लाइक हम पैराग्राफ में लिखते हैं, ठीक है। लाइक सी ये सेकंड पैराग्राफ जो है वो फॉन्ट में थोड़ा से लार्ज कर देती हूँ, ओके। ना उसको हमें
इंडेंट देना है सिर्फ फर्स्ट लाइन को, तो यहाँ पे स्पेशल में क्या सिलेक्ट करना है, फर्स्ट लाइन। और कितना इंडेंट देना है, 1.27 है अभी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 2 इंडेंट देना है, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर का इंडेंट आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे देखो जैसे कि हम पैराग्राफ में देते हैं इंडेंट वैसा हो गया। नाउ हम यहाँ पे सेकंड इफेक्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हैंगिंग इफेक्ट। अगर मैंने फर्स्ट लाइन में हैंगिंग इफेक्ट दे दिया तो क्या इफेक्ट आएगी, सी फर्स्ट लाइन जो है जैसे न्यूज़पेपर में होती है वो आगे से आएगी, और इंडेंट किसको मिलेंगे, बाकी की जो लाइन है फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी की लाइन को सारे को इंडेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो हैंगिंग इफेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको वो रीड करना है, ठीक है। नाउ मिरर इंडेंट, जैसे ही हम मिरर इंडेंट सिलेक्ट करेंगे वो बुक में कैसा होता है, फ्रंट पेज देन पीछे के पेज पे भी प्रिंट होगा, और बुक बनानी है तो उसमें मार्जिन सेट करना पड़ेगा। तो फ्रंट पेज पे जितने भी हमें इंडेंट दिए हैं इतने ही इंडेंट हमें पीछे के पेज में भी मिरर इंडेंट भी देने हैं, ठीक है। तो हम इजीली बुक क्रिएट कर सकते हैं, तो जब हम बुक बनाएंगे तब ये मिरर इंडेंट यूज्ड होगा। नाउ स्पेसिंग, बिफोर पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ हमें कितनी स्पेसिंग देनी है, 2 लाइन के बीच में कितनी स्पेसिंग देनी है, लाइक डबल, सिंगल, 1.5, एटलीस्ट 1.08, ऐसा लाइन स्पेसिंग एट यहाँ पे कितने सेंटीमीटर, वो कितने पॉइंट वो यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है। अगर हमें ऐड नहीं करनी है स्पेस तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टैब आ जाएगी, मतलब हमें टैब देनी है तो हमें कितने सेंटीमीटर में डिफ़ॉल्ट टैब देनी है। अगर हम टैब बटन प्रेस करेंगे, सी यहाँ पे टैब पोजीशन कितनी है, 1.27 सेंटीमीटर बाय डिफ़ॉल्ट है। सो अगर मैंने यहाँ पे टैब दिया किसी भी पैराग्राफ को, सी अगर फर्स्ट पैराग्राफ को अगर मैंने टैब बटन प्रेस किया, टैब जो आपकी कीबोर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड पे है, टैब बटन प्रेस किया तो सी 1 सेंटीमीटर वो ईच एंड एवरी टाइम मूव हो रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कितने हैं 1.27, यहाँ पे टैब पे प्रेस करोगे तो ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अलाइनमेंट हो सकती है, लीडर हो सकता है, क्लियर करना हो तो क्लियर ऑल हो सकता है, ठीक है। डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ आना चाहिए कि ये है, ठीक है। यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट है तो हम डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं कोई भी डायलॉग बॉक्स में। सो यहाँ पे पैराग्राफ में फर्स्ट स्टेप इंडेंट एंड स्पेसिंग ख़त्म हो गई है, ठीक है। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस पैराग्राफ और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स देन यू कैन टेल मी। थैंक यू।